Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Um we are actually studying the chapter mollusca, and we have studied classification as well as relationship of the mollusca to the other animals, origin of the phloem, as well as molluscan characteristics. Okay, and classification of the mollusca, and we are actually studying the class Gastropoda, the different characteristic features of the class Gastropoda. Uh, One important characteristic feature of the class Gastropoda is the torsion, which we have studied in previous lecture, as well as shell coiling, locomotion, feeding and digestion. We have studied this topic, including other maintenance functions like respiration, circulatory system, locomotion, nervous system, and sense organs. Okay, and about the excretory system, right? In excretory system, we have actually studied uh, primitive gastropods possess two nephridia. Okay, the right nephridium, it has disappeared in the modern species due to the shell coiling. The nephridium consists of a sac, ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ. इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें हमने वेस्ट प्रोडक्ट्स की देखी थी, एक्वाटिक जो गैस्ट्रोपोड्स हैं, टॉक्सिक अमोनिया उनके अंदर जो है वो excrete होता है, because plenty of the water is available which is actually required to get rid of toxic ammonia. Ammonia must be excreted as soon as it is synthesized within the body, okay, because it is very toxic for and harmful for the organs and for the body. So that's why as soon as it is produced in the body, it must be eliminated from the body. So plenty of the water is actually required to get rid of this toxic ammonia. So aquatic gastropods, they actually excrete the nitrogenous waste products in the form of the ammonia, okay, and the terrestrial gastropods, they actually convert this ammonia to the less toxic compound, which is called as uric acid. Uric acid is insoluble in the water, and that's why it is less toxic, and it is excreted in a semi-solid form, and it conserves the water, because in terrestrial condition there is no availability of the plenty of the water to get rid of the ammonia. So that's why ammonia is converted to the uric acid, okay, which is semi-solid form. So this is about the previous lectures, and today we will study about the reproduction and the development in the gastropods. Okay, reproductive organ. First of all, we'll study about the reproductive organs in the gastropods. Many marine snails जो हैं, these are dioecious. Okay, having both the sexes in the same individual. The gonads are present in the spirals of the visual mass, and ducts discharge gametes into the sea. ठीक है, जो डक्ट्स हैं वो गैमीट्स को, मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो हैं उनको डायरेक्टली सी के अंदर डिस्चार्ज जो है वो कर देती हैं. जो डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स का मतलब जो है वो वेसल्स हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो इनके अंदर होती है. मैनी अदर जो स्नेल्स हैं वो मोनेशियस भी हैं, यानी कि जिनके अंदर जो है वो सिंगल सेक्स इंडिविजुअल्स जो है वो मौजूद हैं, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है. लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है, फॉर एग्जांपल अगर सेम सेक्सेस इन द सेम इंडिविजुअल इज़ प्रेजेंट, सो उन दोनों के बीच में जो है वो जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि एक इंडिविजुअल का मेल पार्ट और दूसरे इंडिविजुअल का फीमेल पार्ट जो है वो इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो होगी गैस्ट्रोपोड्स के अंदर. फर्टिलाइजेशन जो है इनके अंदर इंटरनल होती है, एंड देयर इज़ म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द कॉपुलेशन प्रोसेस. ठीक है, वन स्नेल में एक्ट एज मेल एंड द अदर में एक्ट एज द फीमेल. और इसके अलावा जो इसमें जो कॉपुलेटिंग ऑर्गन है वो पेनिस है, ठीक है. द पोर्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है ये ग्लैंडुलर होता है. इट सिक्रीट्स म्यूकस और द कैप्सूल अराउंड द फर्टिलाइज्ड एग, एंड सम मोनेशियस स्नेल्स जो हैं वो प्रोटेंड्रिक हैं. प्रोटेंड्रिक मीन दैट देयर male gametes, first of all they develop first
एज कम्पेयर टू द फीमेल पार्ट। इन दिस केस द टेस्टिस डेवलप्स फर्स्ट, ठीक है ना। जो टेस्टिस हैं यानी कि जिन्होंने मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना होता है वो सबसे पहले डेवलप होते हैं। एंड आफ्टर दे डीजनरेट देन ओवरीज बिकम मैच्योर। और जब ये डीजनरेट हो जाते हैं यानी कि अपने गैमीट्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ये फीमेल पार्ट जो है ये डेवलप होता है, राइट। Now we'll study about the development in the gastropods. Eggs, these are shed singly or in masses for the external fertilization. Okay, fertilized eggs, these are deposited in gelatinous masses. जो eggs हैं वो gelatinous masses के अंदर deposited होते हैं, ठीक है। The large yolky eggs of the terrestrial snails, these are deposited in the moist environments like the forest floor, leaf litter, ठीक है। लीफ लिटर का क्या मतलब है कि जो पत्ते ऑटम में झड़ जाते हैं और वो जो है उनके अंदर डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो गलने सड़ने लग जाते हैं, उनके अंदर माइक्रोनिज्म जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं या डिकम्पोजिशन हो रही होती है, ठीक है। तो उनको लीफ लिटर कहते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर लीफ लिटर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और वहीं पे जो है ये योकी एग्स जो हैं टेरेस्ट्रियल स्नेल्स के ये डिपॉजिटेड होते हैं। और कैल्केरियस शेल जो है वो इनकैप्सुलेट्स दैम, उनके ऊपर जो शेल होता है वो जो उनको कवर करता है वो कैल्केरियस है, यानी कि वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। एंड 2 लार्वे दिस आर प्रोड्यूस्ड इन दी गैस्ट्रोपोड्स। वो कौन कौन सी लार्वी हैं? एक को तो ट्रोकोफोर लार्वी कहते हैं और दूसरे को वेलिगेड लार्वा कहते हैं, ठीक है। इन मेरीन जो गैस्ट्रोपोड्स हैं स्पाइरल क्लीवेज उनके अंदर होती है। इट प्रोड्यूसेस फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वी। अब जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये फ्री स्विमिंग है और जो वेलिगर लार्वा है, ठीक है, ये फ्री स्विमिंग लार्वा है विच इज़ आल्सो हैविंग द फुट, आइज, टेंटिकल्स एंड द शेल. These are the different parts of the veliger larva. Okay, and sometimes the trochophore is not produced. Therefore, the veliger is the primary larva. अगर किसी में जो ट्रोकोफोर लार्वी है वो प्रोड्यूस नहीं होता तो उनके अंदर जो है वो वेलिगर लार्वा जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द प्राइमरी लार्वा एंड टॉर्शन अकर्स ड्यूरिंग द वेलिगर स्टेज, ठीक है। देखें ये दोनों लार्वल स्टेजेस हैं, लेकिन जो टॉर्शन है ये कब होती है? इट अकर्स ड्यूरिंग द वेलिगर स्टेज, यानी कि ट्रोकोफोर लार्वी जो है जब ट्रोकोफोर लार्वी डेवलप हो रहा होता है तो उस वक्त टॉर्शन प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये वेलिगर लार्वा के स्टेज के दौरान जो है वो टॉर्शन होती है। एंड ड्यूरिंग द वेलिगर स्टेज इट देन सेटल एंड मेटामॉर्फोज्ड इनटू द एडल्ट, ठीक है। और जब इनके अंदर टॉर्शन होती है वेलिगर स्टेज के अंदर तो फिर ये सेटल डाउन हो जाते हैं और इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है और ये मेटामॉर्फोज्ड हो जाते हैं टू द एडल्ट फॉर्म। ओके, यू गॉट इट? होपफुली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट वेल। एंड नाउ विल स्टडी अबाउट द गैस्ट्रोपोड डाइवर्सिटी। ओके, जो सब क्लास है जिसको प्रोसोब्रैंकिया कहते हैं, ये लार्जेस्ट ग्रुप है गैस्ट्रोपोड्स का। इसके अंदर 20,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं डिफरेंट, और दे आर मोस्टली मेरीन, ये मेरीन में ही जो है पाई जाती हैं। अ फ्यू ऑफ फ्रेश वाटर द टेरेस्ट्रियल, उसमें से कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर भी हैं, यहाँ टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ दिस सब क्लास दिस आर हर्बीवोर्स और डिपॉजिट द फीडर्स, और इसके अलावा जो कुछ हैं इनके अंदर वो कार्निवोर्स भी हैं। एंड सम कार्निवोर स्पीशीज़ दे इंजेक्ट विनोम इनटू दियर फिश, मोलस्क और द एनालिड प्रे विद रेड्यूला, ठीक है। वो अपने रेड्यूला के ज़रिए से क्या करते हैं कि उसके अंदर जो उनका प्रे होता है, जो शिकार होता है, शिकार कौन कौन हो सकता है? फ़िश हो सकती है, मोलस्का कोई हो सकता है, यहाँ पे एनालिड प्रे हो सकती है। उनके अंदर जो है ये विनोम जो है इंजेक्ट कर देते हैं रेड्यूला के ज़रिए से, एंड द रेड्यूला इज़ मोडिफाइड इनटू ए होलो हार्पून, यानी कि नीज़े की तरह का जो औजार होता है वो उस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म है रेड्यूला की इन प्रीडेटर गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। एंड गैस्ट्रोपोडा जो है इसकी कुछ सब क्लासेस भी हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है प्रोसोब्रैंकिया, जो मैं अभी आपको पहले भी बताया है, दे आर मोस्ट फैमिलियर मेरीन स्नेल्स। और जो है ये सब क्लास जो है ये हेट्रोपोड्स हैं,
दीज एनिमल्स दीज आर वोरेशियस, ठीक है, वोरेशियस प्रीडेटर्स हैं, मतलब ये कि ये बहुत ख़तरनाक तरीके से जो है वो अटैक करते हैं टू देयर प्रेस, इसलिए इनको वोरेशियस प्रीडेटर्स कहते हैं। दे हैव वेरी स्मॉल शेल्स, इनके अंदर छोटे छोटे शेल्स होते हैं, मतलब स्मॉल साइज्ड हैं, लार्जर शेल्स नहीं है। या फिर कुछ स्पीशी ऐसी भी हैं जिनके अंदर शेल सिरे से मौजूद ही नहीं होता। द फुट इज़ मॉडिफाइड इनटू एन अंडुलेटिंग फिन, ठीक है, फुट जो है वो अंडुलेटिंग फिन स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाइड होता है। इट प्रोपेल्स द एनिमल थ्रू द वाटर, और ये वाटर में जो है वो प्रोपेल करने में हेल्पफुल है। ओके, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट द फर्स्ट सब क्लास विच इज़ प्रोसोब्रेंकिया, ठीक है, प्रोसोब्रेंकिया। And then there is Opisthobrachia, and this subclass include sea hares, sea slugs and their relatives, ठीक है, and they are mostly marine, ये भी मेरीन में पाए जाते हैं जो Opisthobrachia हैं। दिस क्लास हैज़ 2000 स्पीशीज़, ठीक है, इनकी 2000 के करीब स्पीशीज़ हैं। द शेल मेंटल कैविटी एंड द गिल्स दिस रिड्यूस्ड और लॉस्ट इन दिस एनिमल्स, ठीक है, ये चीज़ें इनके अंदर जो है वो या तो रिड्यूस फॉर्म में है या फिर मुकम्मल तौर पर जो है वो इनके अंदर लॉस्ट है, इनके अंदर मौजूद नहीं है। मैनी ऑफ दीज एनिमल्स एक्वायर अनडिस्चार्ज्ड नेमेटोसिस्ट, इनके अंदर मौजूद होती है फ्रॉम दियर निडेरियन प्रे, ठीक है, और दे यूज़ दीज नेमेटोसिस्ट टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दियर प्रेडेटर्स, ठीक है, और ये जो नेमेटोसिस्ट है या स्टिंगिंग किस्म का जो एक ऑर्गन है जिसको नेमेटोसिस्ट कहते हैं, इसकी वजह से ये अपने प्रेडेटर्स से जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो प्री रिपोर्ट्स हैं दे हैव फुट मॉडिफाइड इनटू थिन लोब्स, और ये स्विमिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा जी जो नेक्स्ट क्लास है सब क्लास वो है पल्मोनेटा, ठीक है, पल्मोनेटा, राइट। अच्छा जी, जो पल्मोनेटा क्लास है इट कंटेन्स 17,000 स्पीशीज़, ठीक है। अब आप देख लें कि जो हमने फर्स्ट सब क्लास स्टडी की है, ठीक है, जो वोरेशियस प्रीडेटर्स होते हैं जिनको प्रोसोब्रेंकिया कहते हैं, ठीक है, और ये जो है ओपिस्थोब्रेंकिया इसकी जो है 2000 स्पीशीज़ हैं, और इसके अलावा इनके अंदर जो है निडेरियन प्रे की तरह जो है इसके अंदर नेमेटोसिस्ट मौजूद होते हैं जो स्टिंगिंग ऑर्गन है, जिसकी वजह से ये प्रेडेटर्स के अटैक से बच जाते हैं। फिर जो पल्मोनेटा में भी स्टार्ट किया हमने, उनके अंदर 17,000 स्पीशीज़ हैं, और ज़्यादातर ये जो पल्मोनेटा हैं ये फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं, या कुछ जो है इनमें से टेरेस्ट्रियल भी हैं। स्नेल्स जो हैं मोस्टली हर्बीवोर्स हैं, और दे हैव ए लॉन्ग रेड्यूला फॉर द स्क्रैपिंग प्लांट मटेरियल्स फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, दिस आर अटैच्ड, ठीक है, और जिस सबस्ट्रेटम के ऊपर ये अटैच होते हैं वहाँ से प्लांट मटेरियल को स्क्रैप करते हैं या उसको जो है वो अपनी फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और द मेंटल कैविटी जो है पल्मोनेट गैस्ट्रोपोर्स हाईली वस्कुलर, ठीक है, जो मेंटल कैविटी है ये हाईली वस्कुलर है। इट एक्ट्स एज अ लंग, और ये लंग के तौर पर ये मॉइस्ट होती है, ये लंग के तौर पर एक्ट करती है। एयर और वाटर मूव्स इन और आउट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द मेंटल कैविटी, एंड द पल्मोनेट्स इंक्लूड टेरेस्ट्रियल स्लग्स, ठीक है, इनके अंदर टेरेस्ट्रियल स्लग्स जो हैं वो मौजूद हैं। ओके, होपफुली यू विल गॉट दिस लेक्चर। ओके, इसको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स इसको स्टडी करें। इसको मैंने पहले भी आपको बोला है कि जितने लेक्चर्स हैं उनको आप राइट अप करें, हर टॉपिक को अलग-अलग से आप स्टडी